Hello student, welcome to Gate Guruji. I am with you Virendra Kumar Jha. In this class, I am going to start the new topic that is convection and radiation. We will study the definition of convection and radiation. Let's start. So in this class, we are going to study the convection and radiation, their definition, their simple definition we will understand. In the previous class, I have given you the sufficient details about the conduction. There we have understood what is conduction, what is the mechanism of heat transfer in conduction, in solid, liquid and gases, what is the definition of thermal conductivity, and what are the thermal conductivity of some common popular substances. So that you know very easily. Now have a look of the convection and radiation. This is the other two modes of heat transfer. In conduction, convection and radiation. In the first class, I have told you, so you know the mechanism of heat transfer, the definition of heat transfer. Now, in this class, I'm going to give you the definition and some of the examples of convection and radiation. You will understand. To give you the sufficient understanding of all these three mode of heat transfer, and we will study in details later, right? So what is in convection we have to study, what is in radiation, what is the formula. So that will be the part one by one we'll discuss. In this class, I will focus only on the definition. Those who are watching me first time, myself Virendra Kumar Jha here, M.Tech in Mechanical Heat Power Engineering, GC Kra District Satara, Maharashtra, India pin 415124, and I have qualified GATE many times, starting from 2013 itself, so 14, 16, 17, 19 each time. So what is convection, right? When I say word convection, means what? Convection means that it is that mode of heat transfer in which the heat is transferred from a solid surface to the surrounding fluid. Surrounding fluid word is necessary, right? In conduction, we don't see such a surrounding medium fluid should be there. It is the transfer of heat from one substance to other or within the same substances from one end to other. That is the conduction. But in convection, we need our surrounding fluids. So in convection, there is some conduction as well as the convection. That is the one, somehow we see that some dispute points. So there should be some conduction, but I will make it clear. So why it is conduction as well as the convection. But difference between conduction and convection is that no material medium you are needed there in conduction. But here, apart from solid surface, the fluid, the surrounding fluid is required to carry the heat transfer. So there is the bulk displacement of the molecule in case of convection, right? So first take the definition, then I will give you some example, then we will understand that what is the convection. Convection is a mode of heat transfer which generally occurs between a solid surface, and the surrounding fluid due to the temperature difference associated with the macroscopic bulk displacement of the fluid carrying heat energy. Due to the macroscopic bulk displacement of the fluid carrying the heat energy. So there will be the solid surface and then the surrounding fluids. The solid surface is heated, so it will give the heat. So there will be some conduction in the adjacent layer in immediate to the solid surface, and then the convection mode will predominate, right? So that is the mechanism of convection. Any mode of heat transfer, there should be a temperature difference, whether it is conduction, convection or radiation. Unless because heat is a form of energy from 7th, 8th standard class, you know that, right? So there should be temperature difference. Heat flows from higher temperature to lower temperature, so that you know. So whether it is conduction, convection or radiation, there is a there is a temperature difference, but the order and magnitude of temperature difference will be different, right? In conduction and convection, the order and magnitude of heat transfer is the order of 1, T1 minus T2, the power is 1. But later in this class, I'm going to introduce that we'll see that in radiation, the power temperature difference, the order of magnitude of the difference of the temperature is more. It is the in the range of T1 to the power 4 minus T2 to the 4. So that I will discuss in the radiation tip. But here I will tell you that we'll understand that in convection there is a temperature difference, of course, from solid surface to the surrounding fluid. So movement of fluid is required. Now the question arises how the movement of fluid will be there. So there are two modes of heat transfer in convection, is the free convection and the forced convection.
So movement of fluid is there. Suppose there is a heated surface here with me, and if I arrange a fan blower here, so there is a possibility that there is a forced convection, that the heat will be blowing, and that blowing air or fluid will carry the heat. So not only air, it may be some other fluids like in heat exchanger, right? You can pass the liquid or any water or any other liquid through the pipe or over the heated surface. So there is another example of again the convection. So here I want to say that we have either the forced convection when we are flowing or moving the air with the help of some external means like pump, that will pump the fluid, that is the liquid, and air, the fan or blower, we can even the wind also. So we'll see that in case of forced convection, the motion of the fluid is provided by the external agency like a fan or pump. So when I can say convection, there are two types of convection. One is forced convection, other is free convection. So in case of forced convection, the motion of the fluid is provided by the external agency like fan or pump or a blower or even the wind itself. In case of free convection, the heat transfer, the buoyancy forces arising out of the density. Now, what is the free convection? In day-to-day life also, you have seen the many phenomena of the free convection. I'll give you some example later. Right? So there is no external fan, blower, etc. is attached, but even then heat is transferred. So even in case of in motorcycle fins, you have seen that there is extended surface. It has all advantage. It increases the surface area and then the heat transfer, right? But also there is a mode of heat transfer is the convection itself, right? Convection, free convection also happens in the sea breezes. You have seen that the cold sea air will come to the earth's surface during the summer itself, and the heated air will light up and the colder air will comes down. So because of the density, when the air is heated, the temperature density is less, right? So that lighter air will move up and the colder air which have the high density will comes down. So because of this mechanism here happening, even in case of refrigeration और इन केस ऑफ एयर कंडीशनिंग इन योर हाउस, यू हैव ऑब्जर्व दैट कि आपने एक विंडो एसी या फिर आप जो भी स्प्लिट एसी लगाए हो, आपने छत के ऊपर से लगा दिया है. व्हाट इज हैपनिंग, द कोल्डर एयर इज कमिंग एंड द लाइट कमिंग डाउन. जो एसी का ठंडा ठंडा कूल चिल हवा है वो आएगा और पूरे कमरे में फैलेगा. और यहाँ जो हॉट एयर है, चाहे आपके बॉडी से के आसपास का एयर जो हीटेड है या आपके घर में कोई कंप्यूटर है या कोई अदर डिवाइसेज चल रहा है, सो दैट आल्सो जनरेट सम हीट्स. तो वो हीटेड एयर है, उसकी डेंसिटी जो है वो कम है, दैट विल मूव अप, वो ऊपर चला जाता है और फिर उसको जो इवेपोरेटर है वहाँ लगा हुआ एसी का, वो खींच के और उसको अंदर ले जाता है. सो दैट इज अगेन द नेचुरल कन्वेक्शन. वहाँ पर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया. हाँ, हालांकि एसी से जो हवा आ रहा है वहाँ पर जो लगा हुआ है वो ब्लो के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कमरे के अंदर जो हो रहा है फेनोमेना, दैट इज द नेचुरल कन्वेक्शन इटसेल्फ. वी आर नॉट गिविंग एनी डिवाइसेज की उसको वहाँ पर हम लगा रहे हैं. ठीक है, हालांकि इवेपोरेटर का प्रेशर टेम्परेचर जो है वो कम होता है, नेगेटिव में टेम्परेचर होता है, तो वो अलग फेनोमेना है, हम RSC पढ़ेंगे तो वहाँ बताऊंगा डिटेल में. लेकिन यहाँ पर हमें समझ में आया कि फोर्स कन्वेक्शन से यहाँ फैन ब्लोअर लगा के हवा दे देंगे और फ्री कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर बाय बुआयंसी. तो ये बुआयंसी से होता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द हॉट air and cold air. So in case of free convection heat transfer, the buoyancy forces arising out of the density changes of the fluid provided the flow. ठीक है, यहाँ पर कोई फैन की जरूरत नहीं है, अपने आप टेम्परेचर डिफरेंस है एयर का, उसकी वजह से buoyancy फोर्स आता है इफेक्ट में और वो ऊपर उठ जाता है लाइटर एयर और कोल्डर एयर नीचे आ जाता है. सो इन जनरल एनी कन्वेक्शन इज हीट ट्रांसफर बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड. एक सॉलिड और फ्लूइड के बीच का है. अब कुछ एग्जांपल देखते हैं थोड़ा और डिटेल में. जैसे ये वाला केस देखो, यहाँ पर एक हीटेड सरफेस है TS, देख लीजिए. यहां पर मैंने एक हीटेड सरफेस लिया है, ये आपको दिख रहा है, ये TS, ये हीटेड सरफेस है, इसका टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर TS है. अब यहां पर हमने एक फैन लगाया है, दैट फैन इज गिविंग द एयर. ये फोर्स कन्वेक्शन है क्योंकि आपने फैन लगाया है, ये मूव कर रहा है तेज गति से, देयर विल बी सम वेलोसिटी, सो इट इज मूविंग ओवर द सरफेस, सो इट इज कैरिंग द हीट. ये इस सरफेस के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये कैरी कर रहा है हीट का. लेकिन यहां पर कुछ हद तक कंडक्शन होता है क्योंकि ये जो एयर होगा जब ये सरफेस के कांटेक्ट में होगा तो यहां पर कंडक्शन हो सकता है. लेकिन जैसे ये ऊपर में है यहां तो बल्क, ये जो हीटेड एयर है ये बल्क डिस्प्लेसमेंट है, यहां से ये आता है. हालांकि कुछ ऐसे भी फेनोमेना है जिसमें ये तीनों चीजें होती हैं, कंडक्शन भी होगा, कन्वेक्शन भी होगा और समहाउ रेडिएशन भी होता है, जो आगे मैं बताने वाला हूं. लेकिन अभी मैं फोकस कर रहा हूं पूरा का पूरा कन्वेक्शन पे. तो कन्वेक्शन पे हमने ये देखा. नाउ
अनदर एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था सीवरेज का, यहां पर देखो ये नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल है। आप देख रहे हो कि जो वार्मर लेस डेंस एयर है, देखो ये ऊपर उठ जाता है, लेस डेंस वाला जो एयर होगा वो ऊपर उठ जाएगा, ये देखो ये लेस डेंस वाला एयर है तो ये ऊपर उठेगा, और जो कोल्डर एयर होता है ये नीचे आ जाता है। यही आपका फ्री कन्वेक्शन का मैकेनिज्म होता है, फ्री कन्वेक्शन मैकेनिज्म। तो बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड, कोई फैन नहीं है, ये अपने आप हवा का जो है मूवमेंट हो रहा है। लेकिन यहां पर आप क्या कर रहे हो, इस वाले केस में आप क्या कर रहे हो, यहां एक्सटर्नल फैन से या ब्लोअर से आप हवा दे रहे हो, सो इट इज कैरिंग द हीट, और ये ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा है। और घर में भी देखा हो, कोई गर्म खाना रखा हुआ है या कोई चीज रखा है, ठंडा रखा तो फैन चला दो जी। क्यों चला देते हो, कि फोर्स कन्वेक्शन ज्यादा हो रहा है, हीट ट्रांसफर वहां पर ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि फोर्स कन्वेक्शन स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। वेलोसिटी फ्लूइड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो हम फोर्स कन्वेक्शन में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। क्या वो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, क्या वो रो पे डिपेंड करता है, क्या वो म्यू पे डिपेंड करता है, क्या वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, क्या वो सीपी पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं। अभी हमें समझ में आया कि फोर्स कन्वेक्शन में एक्सटर्नल पंप और फैन की जरूरत होगी जो तेज गति से हवा देगा, और जितना ज्यादा स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, वैसे भी हम समझ सकते हैं इट विल कैरी मोर एंड मोर हीट, तो उतना ही फास्टर कूलिंग होगा। अब हम देखेंगे यहां पर एक और एग्जांपल दिया हूं फोर्स कन्वेक्शन का। ये देखिए इस वाले केस में भी अगर हम देखें, इस वाले केस में भी अगर हम देखेंगे तो ये फोर्स कन्वेक्शन में एक फैन लगा हुआ है। देखो यहां से ये हीटेड सरफेस है, और हीटेड सरफेस से ये हीट जो है कैरी हो रहा है। हीटेड सरफेस मतलब इसका कुछ टेम्परेचर ज्यादा होगा, 50 डिग्री सेल्सियस, और यहां से जो भी एयर आएगा वो हीट कैरी करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका हीट कौन ले जा रहा है, ये एयर ऐसे मूव करते हुए आएगा और यहां से हीट ले जाएगा। तो फोर्स कन्वेक्शन में हमने देखा कि इस तरह से एयर जो उड़ता हुआ एयर है, ये आपको वार्मिंग एयर, जो एयर चूंकि हीट आ रहा है हीटेड सरफेस के पास, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये लाइटर होगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। नाउ व्हाट इज इन फ्री कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन में देखिए ये भी हमारा हीटेड सरफेस है, और यहां पर नो कन्वेक्शन करंट है। यहां पर देखो कोई करंट नहीं है, ऐसे कोई हवा नहीं मूव हो रही है। यहां पर जो भी है वो एयर का, और हीटेड एयर जो है वो यहां पर उठेगा, लेकिन यहां पर कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई आप जो है एयर का स्पीड या जो अरेंजमेंट है वो नहीं कर पा रहे हो। जो भी सराउंडिंग एयर होगा उसी में मूवमेंट होता है। आप बोलोगे सर सराउंडिंग एयर में भी तो स्पीड होता है, तो विंड का स्पीड भी इफेक्ट करता है। नॉर्मली हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर कोई विंड का जो स्पीड है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है और नॉर्मल है। अब नॉर्मल का डेफिनेशन क्या होता है कि जिसमें स्पीड मतलब आपको ऑब्जर्व नहीं होता, कि यहाँ पर कुछ फील होता हुआ नहीं आ रहा है कि इसमें 10 मीटर पर सेकेंड है, या फिर कुछ 35 किलोमीटर पर आवर का है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो इन नॉर्मल केस वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल अरेंजमेंट देयर, वो सब हम कंसीडर कर सकते हैं। और उस केस में यहाँ पर सिर्फ डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर की चेंज होने की वजह से जो है मूवमेंट हो जाता है, और यहाँ पर भी हीट कैरी हो जाता है। तो ये हमारा फ्री कन्वेक्शन है। अंडरस्टूड। बढ़ेंगे आगे। अब हम देखते हैं रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है। तो कन्वेक्शन हमें समझ में आ गया, फ्री और फोर्स कन्वेक्शन क्या है। नाउ देयर इज अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज रेडिएशन। सो व्हाट इज रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, डू यू नो दैट, जानते हो। तो रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसका नाम ही है, जैसे रेडिएशन जब भी कहते हैं तो लगता है कि अरे यार कुछ रेडिएट हो रहा होगा, या डेफिनेटली कुछ रेडिएट हो रहा होगा। रेडिएशन जब भी आता है तो सोलर रेडिएशन सबको समझ में आ जाता है, कहीं अलाव जग रहा है, आग लग रही है, तो वहां पर ये चीजें हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ दिखाता हूं कुछ रेडिएशन का एग्जाम्पल, जैसे कहाँ कहाँ होता है, फिर मैं बताऊंगा आपको रेडिएशन का। देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल जैसे यहाँ अलाव जलाया हुआ है, तो देखो इस अलाव जलाया हुआ है लकड़ी में, ठंड के दिनों में क्या करते हैं, और ठंड के दिनों में जैसे किसी को ठंड लग रही है तो वो लकड़ी जला लेता है, ये तो नॉर्मल केस है, या कहीं जला रहे तो वहां जाके बैठ जाता है। तो क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पर कि हाथ आप लगा रहे हो, दूर से रहता है, आग नीचे जला हुआ है, लेकिन आपके हाथ दूर में ही आपको सारा टेम्परेचर फील हो रहा है। सो देयर इज नो कन्वेक्शन। यहाँ पर कोई हवा भी नहीं है कि फैन ब्लोअर लगा के हवा उठा उठा के ले रहे हो और उठा ऐसे पकड़ पकड़ के ले रहे हो, ऐसे देयर इज नो सच थिंग्स। सो हियर व्हाट वी एक्चुअली ऑब्जर्व, वी आर हीटिंग योर हैंड, हाथ को हम गर्म कर रहे हैं, और काफी दूर है हीट से, तब भी मुझे महसूस हो रहा है। सो दिस इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वेयर द रेडिएशन, मतलब यहाँ कुछ तो है जो हमारे हाथों को गर्म कर रहा है, कुछ आ रहा है, कोई एनर्जी लेके आ रहा है, हीट एनर्जी, राइट। वो वेव के फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है वो हम जानेंगे अभी। लेकिन यहां पर तीनों चीज हो जाता है ऑलमोस्ट। जो हाथ हम यहां सेक रहे हैं, ये देखो,
ये जो हम यहां पर हैंड शेक कर रहे हैं, तो ये देखो यहां पर इस तरह से ये रेडिएशन है, यहां पर कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एयर वेयर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें महसूस हो रहा है, यही रेडिएशन है। लेकिन अगर कोई यहां पर एक लोहे का रॉड ले ले और वो गर्म करने चला जाए तो उसका हाथ भी गर्म हो जाएगा, लेकिन इसलिए वहां पर हम एक इंसुलेटर लगा देते हैं। नॉर्मल केस में घर में तवा होता है, उस पर भी इंसुलेटर होता है, कोई भी बर्तन में इंसुलेटर होता है जो आग पे चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां आप हीट कर रहे हो तो ये हीट कंडक्ट होके आपके हाथों तक आ जाएगा। यहां गर्मी महसूस नहीं, दिस इज द कंडक्शन, बिकॉज वी आर हीटिंग हेयर एंड द एनर्जी इज transferred from this end to this. So this is because of the lattice vibration or you see the electron transfer. That is the mechanism of conduction. So it is heating here और पहुंच रहा है यहां तक, ठीक है। Now there will be some movement of air, यहां से उठ के हवा के साथ भी कुछ कुछ आता रहता है ऊपर। So this is the convection itself, ठीक है। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें तीनों चीजें ही होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये वहीं पर है, ये रेडिएशन का प्योर एग्जाम्पल हमने लिया कि आपने लकड़ी जलाया तो इसमें जो हाथ में गर्मी महसूस हो रही है वो रेडिएशन आ रहा है। कन्वेक्शन भी हो सकता है कि मान लो कहीं पर हवा तेज चल रही है तो कुछ करंट तो कन्वेक्शन के साथ भी आएगा, एयर के साथ भी आता है। लेकिन अगर मान लो एयर ना भी है, मान लो कि यहां पर एयर नहीं है और तब भी हमें ये हीट महसूस होता है, तो वो मैं यहां पर दिखाने जा रहा हूं। इस केस में तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारे द सन है, सूरज है। तो ये जो है यहां सन से आपको जो मान लो पृथ्वी पे ये बंदा है, कोई एक बंदा यहां खड़ा हुआ है, इसको महसूस हो रहा है। लेकिन जब सन से अर्थ तक ट्रैवलिंग हो रही है लाइट की, तो बीच में ऐसा भी स्पेस आता है कि जो वैक्यूम है, वहां कोई एयर नहीं है। एंड दिस हीट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सन टू अर्थ एंड इवन देयर इज सम वैक्यूम। व्हाट इज दैट? देयर इज नो मटेरियल मीडियम। So to propagate this heat energy, even there is no material medium, it is propagating. So that is the electromagnetic wave. इसी को हम electromagnetic wave कहते हैं, ठीक है। तो वेव के फॉर्म में ये यहां से चला है सूरज से और सबको गर्मी महसूस होती है। खास करके आप अगर ऐसे लोकेशन पे रह रहे हैं जैसे कि दिल्ली, नागपुर, राजस्थान, तो इन सब जगहों पे आपको काफी गर्मी के दिनों में टेम्परेचर हीट रेडिएशन अर्थ पे ही महसूस हो जाता है, ठीक है। तो ये सोलर रेडिएशन है, यहां पर ये वॉट रेडिएशन है। ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें मटेरियल मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, तब भी हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर कॉल्ड एज रेडिएशन। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द डेफिनेशन ऑफ द रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। So what is radiation? Radiation is the mode of heat transfer which does not require any material medium. Hence, it occurs by electromagnetic wave propagation traveling with the speed of light. Right? Hence, it occurs by. तो कोई material medium नहीं है। जैसे कंडक्शन में भी सेम मटेरियल में हो रहा है या एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जा रहा है। कन्वेक्शन में भी उसके सराउंडिंग कोई फ्लूइड होना चाहिए कन्वेक्शन में। लेकिन रेडिएशन में क्या हो रहा है? रेडिएशन में कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, तब भी हीट आ रहा है। So that's why it is in the form of electromagnetic wave propagation traveling with the speed of light. So that is the mechanism of radiation. Powerful. Radiation powerful होता है। क्यों होता है powerful ये भी बताऊंगा। So normally you see that the wavelength, जो फार्मूला होता है एनर्जी का फोटोन का, E is equal to hc by lambda, यही फार्मूला होता है। तो जो एनर्जी है, हीट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एच सी बाई लैम्डा लगाते हैं। लैम्डा वेवलेंथ है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर मान लो 0.1 माइक्रोन के रेंज में अगर हमारा कोई भी वेवलेंथ के रेंज में है, इसको सोलर रेडिएशन कहते हैं और ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है और ये सोलर रेडिएशन होता है। तो लैम्डा जितना कम होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ये सो नो, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो ये लैम्डा है ये जितना कम होगा, नीचे की तरफ होगा, एनर्जी उतना ही ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सोलर रेडिएशन जो होता है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है और 0.1 माइक्रोन के रेंज में होता है। तो थर्मल रेडिएशन का रेंज 0.1 माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन के बीच में होता है और 100 माइक्रोन वाले जो वेवलेंथ है उसको हम लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन कहते हैं, लो टेम्परेचर रेडिएशन कहते हैं। ठीक, मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया है जिससे हमें एक आइडिया लगे कि जो रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वेवलेंथ होगा और 0.1 वाले सोलर रेडिएशन होते हैं, शॉर्ट रेडिएशन होते हैं, इसलिए इतना दूर से भी यहां तक पहुंच जाता है। कभी कैलकुलेट करके देखना कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितना डिस्टेंस है, ये तो कैलकुलेटर गूगल पे अवेलेबल है, ले लेना। स्पीड ऑफ लाइट आपको मालूम है तो ये जरा कैलकुलेट करके देखना, वैसे किसी को मालूम भी होगा
कि सनलाइट को सन से अर्थ तक आने में कितना सेकंड का टाइम लगता है, जबकि इतना स्पीड होता ज्यादा। तो कभी स्पीड ऑफ लाइट जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कहते हो, पहले तो उसको किलोमीटर पर आवर बनाओ और तब एक आइडिया लगेगा कि सच में कितना सेकंड का टाइम लगता है और कितना ज्यादा डिस्टेंस है। और अर्थ का साइज देखो और फिर सन का साइज देखो, तो कई सारा अर्थ सन में समा सकता है, इतना बड़ा सन है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि क्या रेडिएशन कैसे होता है। देखा यह गया है कि दुनिया की जितनी भी बॉडी हैं, ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स इमिट सम रेडिएशंस, ऑल द बॉडीज एक्सेप्ट एट 0 केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को छोड़ के बाकी हर रेडिएशन। हमारा बॉडी रेडिएट कर रहा है, कुछ हीट जनरेट कर रहा है, प्लांट्स की बॉडी कुछ रेडिएट कर रहा है, एलिमेंट की बॉडी कुछ रेडिएट कर रहा है, हीट जनरेट कर रहा है। So all body at all temperature emits thermal radiation except the body at 0 Kelvin. G, understood? All bodies at all temperature emits thermal radiation except the body at 0 Kelvin. The rate of emission from the body is directly proportional to fourth power of the absolute temperature of the body. The question is that कि ये फोर्थ पावर होता है। आगे बताने वाला हूं लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर। ये एक अगला क्लास का जो मेरा थ्योरी है, दैट इज द लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर। उसमें हम बताने जा रहे हैं कंडक्शन के लिए एक लॉ है, कन्वेक्शन के लिए एक लॉ है, रेडिएशन के लिए एक लॉ है। तो वो लॉ क्या क्या है वो बताऊंगा। उसी लॉ के अंतर्गत ये आता है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि जो भी थर्मल रेडिएशन होगा उसका टेम्परेचर T⁴ होता है जी। मतलब अगर मैं देखूं तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर जो होगा वो हमेशा फोर्थ पावर से चलता है, लेकिन कन्वेक्शन और कंडक्शन का T⁴ चलता है। वो मैंने आगे दिया है, दिखाता हूं। इसलिए ये पावरफुल होता है। और ये कब कब प्रीट्यूमिनेट्स होगा वो भी मैं बताने जाने वाला हूं कि अगर तीनों हो रही हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहां रेडिएशन है। और रेडिएशन सबसे ज्यादा है, बाकी सब कम कम है, थोड़े थोड़े हैं। सो हियर विल सी दैट when there is a large temperature difference is prevailing radiation mode of heat transfer predominates conduction and convection. जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है, when there is a large temperature difference is prevailing radiation mode of heat transfer predominates conduction and convection. ये पॉइंट याद रखना चाहिए। समझ आया? ये कहता है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट है हीटेड और सराउंडिंग है उसमें अगर ज्यादा है तो रेडिएशन मोड ज्यादा होता है, क्योंकि वो पावर 4 से चलता है। तो एक टाइम तो मैं 4 गुना, अगर ये 10 है तो वो 10⁴ है। डिफरेंस की बात कर रहा हूं। नाउ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन हॉट फ्लू गैसेज एंड रिफ्रैक्ट, ये नोट 2 है, ये याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। तो मैं वही दे रहा हूं जो क्रीम है और इसको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन इजी से होगा ही होगा। पढ़ेंगे आगे। द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन हॉट फ्लू गैसेज एंड रिफ्रैक्टिव ब्रिक वॉल्स इन अ लार्ज pulverized fuel fired पावर बॉयलर इज डोमिनेंटली बाय रेडिएशंस। तो बॉयलर के अंदर आपने ये मैकेनिज्म अगर आप इंजीनियरिंग करके आए हो या अगर नहीं सीखे हो तो आगे सीखोगे। बॉयलर के अंदर देखा गया रिफ्रैक्टरी ब्रिक यूज किया जाता है और आप कोल को बर्न करके पानी गर्म करते ना, तो वहां पर जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी रेडिएशन हो जाता है between hot flue gases and refractive brick walls in large pulverized fuel fired। ठीक है, तो कोयले को आग लगा के वहां पर फिर से हीट जनरेट करके पानी गर्म कर किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव जो वॉल है जो हमें बाहर हीट नहीं जाने देता है, उस कंडीशन में भी देखा जाए तो रेडिएशन है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको समझ लेना। बॉयलर जब पढ़ोगे तो एक बार याद कर लेना। रीजन क्या है, क्या रीजन है कि जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है तो वो रेडिएशन होता है, और ये हॉट पल्वेराइज फ्यूल फायर्ड बॉयलर में भी रेडिएशन ज्यादा है। रीजन यही है कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है T⁴ है, सिग्मा ए T⁴ होता है। अभी पढ़ाऊंगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो रेडिएशन के लिए लागू होता है। ये स्टीफन वाले ने लैब में एक्सपेरिमेंट करके दिया, बड़ा आसानी से हम क्या पाते हैं अभी आजकल, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब पता चलता है कि क्या है। यही तो रिसर्च है। तो चले बात करेंगे हम आगे। अभी तो हम एग्जाम की बात करें तो ये जो मेरा गेट गुरुजी पे फोरम है इस पे हम रिसर्च की बात कम करते हैं और सिर्फ एग्जाम कैसे पास करें उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, जो जरूरी है, हर चीज का अपना पर्पस है। यहाँ पर्पस है एग्जाम पास करना। तो बढ़ेंगे आगे। क्यू रेडिएशन T⁴ T⁴ व्हेन T इज इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर स्केल में है। और ये जो डिफरेंस है ये पावर 4 में आया है। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, आगे पढ़ेंगे वहां बता दूंगा वो लॉ क्या है, तो डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से कंडक्शन और कन्वेक्शन हो जाए तो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये T1 - T2 है। ये देखो यहां पर हमने देखा
तो इसमें पावर 4 के फॉर्म में चल रहा है ये देखो, और यहां पर T1, यहां पावर 1 है, तो कौन सा ज्यादा होगा? इवन अगर ये मान लो 10 डिग्री का गैप है इसमें, तो ये गैप तो 10 की पावर 4 पे जाएगा। यस सर, 10,000 पे चला जाएगा, और ये तो 10 ही है। कितना ज्यादा डिफरेंसेस हो जाता है, 1000 टाइम ज्यादा। अगर दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो ये 10 की पावर 4 मतलब 4 जीरो डालो और इसके ऊपर 10 डालो, तो मतलब ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस का चेंजेज है, रेडिएशन मोड ऑफ ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है कंडक्शन और कन्वेक्शन के कंपैरिजन में। दैट्स व्हाई you have to take this into account. But when you're talking about the temperature difference in case of radiation, make sure that T is in Kelvin scale, but in conduction and convection it is a choice whether you keep it in Kelvin or in degree Celsius. Understood? We'll do the lots of numerical here. तो बने रहिए, और चैनल अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आगे की वीडियोस आपसे छूटे नहीं है। ये तो मैंने बता दिया रेडिएशन के कुछ एग्जांपल्स थे डे टू डे लाइफ में। एक और एग्जांपल है रेडिएशन का जिसमें मैंने ये सारी बात बताया है, जरा ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर हम पानी गर्म कर रहे हैं, एक इस तरह का आपने कोई कंटेनर लिया हुआ है, बर्तन लिया हुआ है, और उसमें पानी गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये आपने अलाव जलाया हुआ है, आग लगाया हुआ है, और इस तरह से रेडिएशन भी बाहर जा रहा है। यहां पर कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति इस तरह से यहां पहुंच जाता है, तो इसको गर्मी महसूस होने लगी क्योंकि यहां आग लगी हुई है, तो रेडिएशन से इसको फील हो गया, या फिर आपके हाथों को भी यहां पर फील हो रहा होगा, ये रेडिएशन है। लेकिन ये जो हीट है इस पानी, इसके बर्तन के अंदर पानी है, ठीक है, तो ये हमने इस तरह से सस्पेन बोलो, जो भी बोलना है इसको। अब इसमें देखा जाए तो ये पानी के बबल्स बन रहे हैं क्योंकि ये हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये जो हीट ले रहा है, ये हीट किस तरह से आ रहा है, इसको कन्वेक्शन से जा रहा है। किससे जा रहा है? कन्वेक्शन से जा रहा है, सॉलिड से, क्योंकि ये पहले सरफेस को, इस बर्तन के सरफेस को गर्म करेगा। बर्तन के सरफेस को गर्म करने के बाद, पहले ये बर्तन के सरफेस को गर्म करेगा और फिर उसके बाद ये इस तरह से हीट जो है ऊपर उठेगा। ठीक है, ये कन्वेक्शन हो जाएगा। अब ये हाथ को, जिसने हैंडल को पकड़ रखा है, तो इसको गर्मी महसूस होती है, हीट तो हम यहां दे रहे हैं। तो चूंकि ये बर्तन गर्म हुआ और फिर ये हीट कंडक्ट होके इसके हाथों तक पहुंच गया, सो दिस इज द मोड ऑफ कंडक्शन। यहां पर इसमें कंडक्शन भी है, कन्वेक्शन भी है, क्योंकि ये लिक्विड गर्म हो रहा है, हीट यहां से हीट जा रहा है, बर्तन गर्म होने के बाद ये लिक्विड में जा रहा है, तो ये कन्वेक्शन है, और फिर हमें ये रेडिएशन है। तो जो यहां पर देख रहे हैं, मुझे बताइएगा कि इस वाले केस में जो कन्वेक्शन है, तो आपसे क्वेश्चन एक छोड़ के चलता हूं कि ये फ्री कन्वेक्शन है या फोर्स कन्वेक्शन है, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मेल, वेबसाइट सब देने वाला हूं, तो हमें ज़रूर बताइएगा, और मैं इसका एग्जैक्ट आंसर भी दूंगा। फोर्स कन्वेक्शन है या फ्री कन्वेक्शन है, दोनों में क्या है ये हमें बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन भी हो रहा है। सो आई गिविंग एन एग्जाम्पल। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, एग्जाम्पल भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत सारा। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस क्लास। वंस अगेन वेलकम टू ईजी स्टडी। ईजी और स्टडी का ऑनलाइन वेंचर ही है गोविंद गुरुजी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ईजी और स्टडी के ऐप पे भी आपको गेट के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। गेट सेक्शन में आप गेट सेक्शन में जाइए और वहां पर आपको सारे डिटेल मिलेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।